Hello all my viewers, this is Neetu Ghai and I welcome you all from the platform of Defence Services Academy. As you all are familiar with me, you all know me very well. I am your English teacher. I am faculty of English in Defence Services Academy and I have taught you many things till now. So we have done the grammar basic में I have started noun और थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं. Today I'll be beginning with the vocab section. Vocab section, yes. Now, from today, every alternate day, I'll be teaching you vocabulary in which I'll be teaching you some words. Along with that, I'll be teaching you synonyms and the antonyms of that particular word and the sentence which will use that particular word. अब ये vocabulary की ज़रूरत क्या है? Vocabulary की ज़रूरत इसलिए है बच्चा कि whenever you will do the exam, there will be two segments of questions, that is synonyms and antonyms. You will be getting one sentence in which one letter will be highlighted. उस हाईलाइटेड वर्ड का आपको बेस्ट सिनोनिम पूछा जाएगा इन द टॉपिक सिनोनिम और उस हाईलाइटेड वर्ड का आपको एंटोनिम पूछा जाएगा इन द एंटोनिम सेगमेंट. तो यू मस्ट ऑल नो द वर्ड with the synonym and antonym. So let's begin it. So students, as I was talking about vocabulary will help you to help in spoken English. Vocabulary will help you to have the fluency in English. Vocabulary will help you not only in solving the exam but also in your day-to-day life. So whatever words I am teaching you, first of all, I'll give you the easy meaning of that word. Along with that, I'll be giving you synonym and antonym of that particular word. In addition to that, I'll also give you the sentence based on that word so that वो पूरा word अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. But what the deal is? The deal is you must use all those words in your day-to-day language. You must make more and more sentences based on that वर्ड. ओके, और जैसे ही हम लेटर्स या जैसे ही हम वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कंप्लीट करेंगे, आई विल गिव यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट कि एग्जाम में उन वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आए थे, सो एज यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वोकैबुलरी सेगमेंट. तो लेट मी इंट्रोड्यूस टुडे द वोकैबुलरी सेगमेंट. तो लेट्स बिगिन vocabulary. So I am beginning the vocabulary section alphabetically. I am beginning the alphabet A, synonyms and antonyms. So let's begin synonyms and antonyms with letter A. Now, the first word with the letter A is aback. Now, what do you mean by aback? Aback means taken by surprise. आश्चर्यचकित रह जाना, शॉक हो जाना, एकदम बिल्कुल साइलेंट हो जाना, एकदम सरप्राइज हो जाना, दैट इज अबैक. तो अबैक मीन्स, अगर आप चाहे बच्चा तो आप इसको हिंदी में भी इजीली लिख सकते हैं. अबैक मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, दैट मीन्स सरप्राइज्ड हो जाना, दैट मीन्स शॉक्ड हो जाना. ओके, तो व्हेन द मीनिंग इज टेकन बाय सरप्राइज, द सिनोनिम्स विल बी सरप्राइज्ड, थ्रोन ऑफ गार्ड. तो सी, टू थ्रो ऑफ गार्ड इज अ फ्रेज. अब आपको अगर एग्जाम में टू थ्रो ऑफ गार्ड आ रहा है तो उसका सिनोनिम है सरप्राइज. तो हम अबैक वर्ड से दो वर्ड सीख रहे हैं, अबैक एंड टू थ्रो ऑफ गार्ड. टू थ्रो ऑफ गार्ड मीन्स एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, एकदम सरप्राइज हो जाना. क्लियर? नाउ अब इसका एंटोनिम्स. नाउ व्हाट यू मीन बाय एंटोनिम्स? एंटोनिम्स है ऑपोजिट, सिनोनिम्स है सेम मीनिंग वर्ड्स. तो व्हाट विल बी द antonym of aback? Relaxed and contented. Now what is contented? See, contented means happy, contented means satisfied, contented means संतुष्ट, एकदम चिल, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आराम से बैठे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, तो दैट इज कंटेंटेड. तो अबैक मीन्स सरप्राइज, एकदम शॉक हो जाना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, एकदम ध्यान भटक जाना. सी, टू थ्रो ऑफ गार्ड मीन्स आप कुछ कर रहे हो और एकदम आपका ध्यान भटक गया, तो दैट इज अबैक. और उसका ऑपोजिट है, दैट इज रिलैक्स, हैप्पी, चिल, जॉयफुल. नाउ हाउ टू यूज दिस वर्ड इन द सेंटेंस? सी, एवरीवन वाज टेकन अबैक बाय सचिन्स डिसीजन टू क्विट. तो जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट छोड़ने की, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टू क्विट? टू क्विट मीन्स टू लीव, छोड़ देना.
गेम छोड़ देना। तो जब सचिन ने ये डिक्लेयर किया कि वो क्रिकेट छोड़ रहे हैं तो एवरीवन वाज शॉक्ड, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। एवरीवन वाज सरप्राइज। नाउ रिसेंटली वी हर्ड अबाउट MS धोनी लीविंग द वनडे इंटरनेशनल, तो तब हम शॉक हो गए कि अरे ये कैसा, इतनी जल्दी कैसे इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो दैट इज आश्चर्यचकित हो जाना। डन। तो आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वर्ड, and the next word is abandon. Now what do you mean by abandon? Abandon means छोड़ देना। हमने अभी वर्ड किया है to quit. To quit means to leave. Abandon करना, त्याग देना, छोड़ छाड़ के चले जाना। To get isolated, बिल्कुल सबसे अलग हो जाना, त्याग कर देना। The perfect word is त्याग देना। Okay, तो abandon means त्याग देना, दैट मीन्स परमानेंटली किसी भी चीज को छोड़कर चले जाना। सी, टू लीव समथिंग एंड नेवर रिटर्न टू इट, आप उस चीज पे वापस नहीं जा रहे हो, आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो दैट इज अबैंडन। द किंग अबैंडन्ड हिज किंगडम एंड वेंट टू द वुड्स। नाउ वुड्स, yesterday only I taught you the meaning of woods. Woods means forest. तो राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया, राज्य त्याग दिया और जंगल में चला गया। सी, तो abandon means just to leave. Now synonym है desert and leave. Now what do you mean by desert? अब desert के दो मीनिंग है, एक है रेगिस्तान और एक है अलग कर देना, छोड़ देना। That is desert, just to leave, अलग कर देना। क्लियर? नाउ अब जब abandon मतलब अलग हो जाना, छोड़ देना, त्याग देना, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा कंटिन्यू करना, कैरी ऑन करना, चलते रहना, उस चीज को छोड़ना नहीं। क्लियर? नाउ द सेंटेंस, रेलवेज हैज अबैंडन्ड देयर आउटर सिग्नल। तो रेलवे अपने आउटर सिग्नल को छोड़ दिया है, रेलवेज ने त्याग दिया है, लीव कर दिया है, आगे चले गए हैं। क्लियर? वन मोर सेंटेंस, द किंग हैज अबैंडन्ड हिज किंगडम and went to the woods. Clear? Now check out the next. And the third word is abase. Now abase karna, that means to insult. किसी की बेइज्जती करना, किसी को humiliate करना। See, this word humiliate means to insult, किसी की बेइज्जती करना। Okay? Now अगर abase means to insult, तो उसका synonyms क्या होगा? उसकी रेपुटेशन खराब करना, उसके बारे में गलत बोलना, दैट मीन्स डिग्रेड। डिग्रेड करने का मतलब होता है खराब करना। डिग्रेड का मतलब होता है खराब करना। जैसे आप मोबाइल में अपग्रेडेशन करते हो, अपग्रेड करते हो, लेवल से ऊपर करते हो, लेवल अच्छा करते हो। डिग्रेड करना, नीचे करना, मीन्स उसको लोअर करना। तो डिग्रेड करना, खराब करना। डिसरिगार्ड करना, किसी के बारे में गलत बात बोलना। अब डिसरिगार्ड आपने कई बार सुना होगा, गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स को मेरा हेलो बोलना, मेरी तरफ से उनको विश करना। तो डिसरिगार्ड करना मतलब गलत बात करना। तो अगर किसी की इंसल्ट करना, डिसरिगार्ड करना। डिसऑनर आपको पता ही है, ऑनर करना किसी की तारीफ करना, डिसऑनर करना किसी को इंसल्ट करना। क्लियर? अब इसके एंटोनिम, सी, प्रेज करना, रिगार्ड करना, ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना। ओके, नाउ सी द सेंटेंस बेस्ड ऑन दिस। अबैसिंग समवन इज इमोरल। नाउ अबैसिंग मीन्स इंसल्टिंग, इंसल्टिंग समवन इज इमोरल मतलब गलत है यार, नहीं करना चाहिए। You must not insult anyone, no matter what the level of the person is. अगर आपके यहाँ servants भी हैं, अगर आपके यहाँ maids भी हैं, if the some person is not able to have the level with you, still don't insult them because everyone is having their own self-respect. तो किसी की भी insult मत करो. Okay, now come to the next word. And the next word is abashed. Abashed किसी को एकदम अनकंफर्टेबल फील कराना, एम्बैरेस फील कराना, किसी को एकदम ऐसा फील कराना, वियर्ड फील कराना। ना वियर्ड, अनकंफर्टेबल, ऑल मीन्स द सेम। दैट मीन्स किसी को अलग सा फील कराना, थोड़ा सा गलत, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। नाउ दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, बुरा। ओके, टू मेक समवन फील एम्बैरेस्ड और अशेम्ड, वो शर्मा रहा है। इंग्लिश में अगर हम बोल रहे हैं अबैश्ड, तो हिंदी में
शर्मिंदा करवाना, किसी को शर्मिंदा फील कराना. ओके, नाउ सी सिनोनिम्स. सिनोनिम एम्बैरेस, ह्यूमिलिएट. ह्यूमिलिएट हमने अभी किया है, टू इंसल्ट. अब अगर इंसल्ट दैट मीन्स आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप उसको अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं. ओके, एंटोनिम्स है अनबैश्ड. नाउ ये अबैश्ड और यहां पर अनअबैश्ड मीन्स उसको कंफर्टेबल फील कराना. अनडॉन्टेड मीन्स उसको कंफर्टेबल फील कराना, उसको हैप्पी फील कराना. ओके, ही इज अबैश्ड ऑफ हिज ओन मिस्टेक्स. वो खुद ही अपनी गलतियों पे शर्मिंदा है. वो खुद अपनी गलतियों पे शर्मिंदा है. डोंट मेक योर पेरेंट्स अबैश्ड ऑन यू. या डोंट मेक योर पेरेंट्स फील अबैश्ड बिकॉज ऑफ यू. डोंट डू एनी सच एक्शंस विच मेक्स योर पेरेंट्स फील अबैश्ड. तो ऐसे कुछ भी काम मत करो जिससे आपके पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े. मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड ऑन यू एंड दैट इज माई थिंग. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. And the next is abet. Abet means किसी को वीकन करना, किसी को कमजोर करना. तो यहां पे आप लिख सकते हो टू वीकन. ओके, हिंदी में लिख सकते हो कमजोर करना. दैट मीन्स किसी की ताकत को कम करना, खत्म नहीं करना, कम करना. ओके, अब जैसे अगर इसी पे मैं वर्ड दूं, द पेन has been abated by the painkillers. अब this sentence is from the exam only. Now the pain has been abated by the painkillers. दर्द कम कर दिया गया पेन किलर्स से. अब दर्द को खत्म नहीं किया, दर्द को कम कर दिया. abated means टू वीकन, टू लेस, कम कर देना. अब किसने किया पेन को कम? पेन किलर्स को. ओके, नाउ सिनोनिम्स है वीकन, लेसन, कम कर देना. ओके, तो यहाँ कमजोर के साथ आप हिंदी में लिख सकते हो कम कर देना. नेक्स्ट इज एंटोनिम्स. अब एंटोनिम्स अगर ये है कम कर देना, तो एंटोनिम्स होगा और ज्यादा एम्पलीफाई कर देना, और ज्यादा मजबूत कर देना. स्ट्रेंथन, इंटेंसिफाई. इंटेंसिफाई करना और ज्यादा कर देना, और ज्यादा जोरों से कर देना. ओके, नाउ सी वी वेटेड फॉर द विंग टू अबेट. तो हमने इंतजार किया कि वो विंग कम हो जाए, या वो पेन कम हो जाए, या वो परेशानी कम हो जाए. क्लियर? डन? तो यू कैन राइट दिस सेंटेंस ऑल्सो एंड दिस सेंटेंस ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट इज एब्रीविएट. अब ये तो आपको पता है, आपने डे टू डे लैंग्वेज में यूज किया है एब्रीविएशन. एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म, जैसे VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज एब्रीविएशन. तो दीज आर शॉर्ट फॉर्म्स. जैसे आप लिखते हो ASP, as soon as possible, just contact me ASAP. तो ASAP, as soon as possible. So this is abbreviation. तो abbreviation means shorten. तो abbreviate करना, छोटा कर देना. Okay, now synonyms है to abridge. अगेन एवरेज करना, कम कर देना, छोटा कर देना. टू कर्टेल, कर्टेल करना. टू शॉर्टन, कम कर देना. अब कर्टेल पे आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस. द 5 days सेरेमनी was curtailed to 2 days सेरेमनी. तो 5 दिन के सेरेमनी को कर्टेल कर दिया गया 2 दिन की सेरेमनी में. दैट मीन्स कैंसिल नहीं किया, उसको कम कर दिया. ओके, नाउ अब ये सी, कर्टेन और कर्टेल दोनों में फर्क है. कर्टन मतलब पर्दा, कर्टेल मतलब छोटा करना. तो आई एम अपडेटिंग योर वोकैबुलरी विद ईच एंड एवरी वर्ड यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन. तो कर्टेल करना, छोटा करना. कर्टन मीन्स पर्दा, खिड़की का पर्दा, विंडो का पर्दा, दरवाजे का पर्दा, पर्दा. नाउ Synonyms to abridge, to curtail. Antonyms है lengthen. अब इसका मतलब छोटा करना, तो antonyms होगा बड़ा करना. Enhance आपको पता है, enhance करना, बड़ा करना. Clear? See the sentence. The voluminous book. Now what do you mean by voluminous? अब voluminous base word क्या है? Volume.
वॉल्यूम मीन्स जगह, तो वॉल्यूमिनियस मतलब जिसमें बहुत ज्यादा जगह है, दैट मीन्स बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो वॉल्यूमिनियस बुक वॉज एब्रीविएटेड, अगेन एब्रीविएटेड मतलब शॉर्टन, कम कर देना, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इतनी बड़ी बुक को, इतनी लेंथी बुक को छोटा कर दिया, किस चीज के लिए? स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वीनियंस? कन्वीनियंस मीन्स हेल्प, कन्वीनियंस मीन्स टू गेट ईजी, आराम के लिए सिंपल फॉर्म में कर दिया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स टू गिव अप पावर। टू गिव अप पावर मतलब अपनी सत्ता छोड़ देना, अपनी पावर छोड़ देना, अपनी अथॉरिटी छोड़ देना। तो एज आई गिव यू द एग्जाम्पल फॉर अबैंडन, द किंग अबैंडन हिज किंगडम एंड एब्डिकेटेड हिज किंगडम, दैट मीन्स अपनी सत्ता छोड़ दी, अपनी कुर्सी छोड़ दी। ओके, अब एब्डिकेट के सिनोनिम रेलिंक्विश, रेलिंक्विश अपना पावर छोड़ देना, अपनी सत्ता छोड़ देना, रिनाउंस छोड़ देना, अपनी कुर्सी, अपना पावर, अपनी जो ओहदा है, अपनी डेजिग्नेशन है वो छोड़ देना, अपनी जगह छोड़ देना। ओके, अब अगर ये है अपनी जगह छोड़ देना, तो इसके एंटोनिम्स होंगे एक्सेप्ट, किसी भी पावर को या किसी भी पावर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। ओके, नाउ सी द सेंटेंस, द ओल्ड किंग एब्डिकेटेड द throne. What do you mean by throne? Throne is राजगद्दी। तो किंग ने, बूढ़े राजा ने अपनी राजगद्दी त्याग दी, दैट मीन्स अपना पावर छोड़ दिया, अपनी कुर्सी छोड़ दी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज एबेरेंट। एबेरेंट मीन्स सही रास्ते से अलग चलना, जो टिपिकल या यूजुअल रास्ता है उससे अलग चलना। होता है कई बार आप लोग दोस्त कहीं जाते हो, रोड पे जा रहे हो, तो एक हमेशा कोई ना कोई एक बंदा ग्रुप में होता ही है जो हमेशा दूसरी तरह से बात करेगा या दूसरे रास्ते से बात करेगा। जो सब बोलेंगे वो कभी नहीं करेगा, वो दूसरा ही कुछ करेगा, एंड दैट इज एबेरेंट। एबेरेंट मीन्स सही रास्ता या जो यूजुअल बात है उससे अलग करके बात करना, उससे कुछ अनयूजुअल सा रास्ता चुनना, अनयूजुअल सा व्यू बताना, अनयूजुअल सी थिंकिंग बताना। तो दैट इज एबेरेंट थिंकिंग और स्टेइंग अवे फ्रॉम द राइट और द नॉर्मल वे। तो जो सब कर रहे हैं वो कभी वो नहीं करेगा, वो उससे अलग ही कुछ करेगा। ओके, नाउ सी सिनोनिम्स है डेविएंट। डेविएंट मीन्स डिफरेंट, डेविएंट मीन्स डिफरेंट। तो ये सब कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, अब वो तो डिफरेंट ही करेगा क्योंकि उसको तो सब चीज अलग करनी होती है। ओके, सपोज यू ऑल वेंट फॉर द पार्टी और सबने पार्टी में बोला कि यार आज तो चाइनीज खाएंगे। अब एक बंदा है वो बोलेगा नहीं यार मुझे तो डोसा ही खाना है। तो वो एबेरेंट कि जो सब कर रहे हैं वो कभी नहीं करेगा, वो कुछ अलग ही करेगा। ओके, नाउ अटिपिकल। अटिपिकल कुछ अलग सा। ना अगर ये कुछ अलग सा है तो इसके एंटोनिम्स होंगे नॉर्मल, यूजुअल, क्योंकि ये अनयूजुअल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका ऑपोजिट यूजुअल। सी द सेंटेंस, एबेरेंट बिहेवियर कैन बी अ साइन ऑफ रैबीज इन एन एनिमल। अब आपको पता है रैबीज इज अ डिजीज, तो अगर कोई एनिमल अपने नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स उसमें वो डिजीज है। दैट इज अ सिम्टम, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शोइंग दैट ही इज बिहेविंग डिफरेंट। ओके, नाउ एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अबेट। नाउ अबेट मीन्स अगेन किसी को गलत काम के लिए प्रोवोक करना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोवोक? आई हैव यूज्ड दिस वर्ड प्रोवोक। अब प्रोवोक क्या होता है बच्चा? प्रोवोक करना, भड़काना, किसी को गलत काम के लिए भड़काना, उकसाना, प्रोवोक करना, एंड स्पेशली फॉर द रॉन्ग थिंग, दैट इज अबेट। कि रॉन्ग थिंग के लिए आप किसी को भड़का रहे हो कि नहीं जा मार उसको, जा मार ही आ तू जाके उसको मार ही देना, तो दैट इज अबेट करना। ओके, नाउ सिनोनिम्स असिस्ट। अब आप उसको भड़का रहे हो तो यार आधा काम तो आप भी कर रहे हो, अगर सजा होगी तो आपको भी सजा होगी क्योंकि भड़काया किसने? आपने भड़काया। तो नेवर नेवर प्रोवोक एनीवन टू डू अ रॉन्ग थिंग। नाउ इंसाइट, इंसाइट करना, भड़काना, बढ़ाना, ठीक है। एनकरेज, एनकरेज बढ़ावा करना, बढ़ावा देना। तो अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं भड़काना,
भड़काना मीन्स किसी भी आग को भड़काना, किसी भी गलत चीज को हवा देना, तो दैट इज इंसाइट। क्लियर ना? इसका ऑपोजिट है डीमोटिवेट या रोकना, प्रिवेंट। तो कोई अगर लड़ाई करने भी जा रहा है, आप उसको ये नहीं बोल रहे जा उसको जाके मार के आ, आप उसको रोक रहे हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना, दिस इज रॉन्ग, तो दैट इज प्रिवेंट, रोकना, डीमोटिवेट करना। और अगर आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, दैट मीन्स आप इंसाइट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, जा जा मार के आ उसको, मैं तेरे साथ हूं, जा मार के आ, तो दैट इज अबेट। नाउ सी, शी अबेटेड द थीफ इन द रॉबरी। ओह नाइस सेंटेंस, शी अबेटेड द थीफ इन द रॉबरी, तो उसने चोर को एनकरेज किया चोरी करने के लिए कि जा चोरी कर, मैं तेरे साथ हूं, आई विल हेल्प यू इन द रॉबरी, तू जा चोरी करके आ। तो करते हैं आप अपने दोस्तों की हेल्प लड़ाई करने के लिए ऐसे? बिल्कुल भी नहीं करना। नाउ कमिंग टू द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज वोकैब सेक्शन, एंड द लास्ट वर्ड इज abeyance. Now abeyance is a state of not happening being used at present. Again मिलते जुलते वर्ड्स हैं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। हमने किया था abandon, abandon करना, छोड़ देना, abduction मतलब छोड़ देना, abeyance भी सेम, that means abandon, कुछ टाइम के लिए छोड़ देना। सी, abandon करना परमानेंटली लीव करना, लेकिन abeyance मतलब फॉर अ टाइम पीरियड। abeyance का मतलब है टाइम पीरियड के लिए, थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाना, थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाना, पर वो परमानेंट नहीं है, परमानेंट अबैंडन है। ओके ना, सस्पेंशन, Now what do you mean by suspension? Suspend, उसको क्लास से सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड कर दिया तो उसको रेस्टिकेट नहीं किया, सस्पेंड करना कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना। ओके, आफ्टर सम टाइम इट विल बी बैक। अब इसको याद कैसे रखेंगे? आपकी गाड़ियों में सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, आपकी गाड़ियों में सस्पेंशन होती है, साइकिल में, बाइक्स में, तो वो कुछ टाइम के लिए दूर जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो सस्पेंशन, एबियंस, टेम्परेरी दूर जाना, लेकिन बाद में वो वापस आ जाते हैं। ओके, नाउ सी, एंटोनिम्स है कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूएशन। रिजम्पशन, अगेन रिज्यूम कर लिया। आपने कभी मोबाइल में देखा है, यू वांट टू रिज्यूम, आप गेम खेल रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं, मतलब अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर? तो रिजम्पशन मीन्स रिज्यूम करना, अगेन कंटिन्यू करना। नाउ द ओल्ड जनरेटर हैज बीन इन एबियंस फॉर 6 months। तो 6 months से पुराना जनरेटर काम नहीं कर रहा, उसको हम काम में नहीं ला रहे, पुराना जनरेटर रखा हुआ है पिछले 6 months से। तो द ओल्ड जनरेटर हैज बीन इन एबियंस, दैट मीन्स उससे हम काम नहीं कर रहे, वो डिसकंटिन्यू है फ्रॉम द वर्क। Done. So today I have taught you these 10 words along with the synonyms and antonyms. We'll continue with the vocab section every alternate day, so that simultaneously आपके NDA एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन होती जाए और आपकी vocab भी अपडेट होती जाए। So students, once again I am back with the new style of saying the boring phrases. Now today's phrase is how to say I don't like it. तो whenever you have to say to someone कि I don't like it, मुझे ये पसंद नहीं है, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे It's not my cup of tea. Again I am repeating, it's not my cup of tea. One more, I can't stand it. I can't stand it. One more thing, it's not my thing. One more, it's not my thing. And the last, it drives me crazy. So these are the new style in which you can say I don't like it. So I think you can use this phrase, it's not my cup of tea, in your day-to-day language. So that's all for today. Once again I'll be back tomorrow with the new topic and with the new style of saying the old phrases. Till then study hard, और एक चीज तो भूल ही गए, don't forget to give your feedback on the video. That is the most important. तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर बताइएगा in the comment box. Till then, thank you.